Hello everyone and welcome to Ashra News. This is your host Apurva and today we have with us Mr. Anand Gandhi. Sir is majorly known for his work as a creative director and co-writer of Thambad and many more work which he have done. So I would like to ask you firstly, let's go back 25 years, 2000 to 2025. Can you tell me your interest related to soap operas or dailies? Yeah, I wrote them Yeah, that's why I asked you. early on in my I was life. going there. Yeah, early on in my life, and I think it's a very powerful medium if done well. I don't think it's been done well in a while, not in this part of the world at least. But given that it manages to engage and um, simulate so many people at once, that it manages to seduce millions of people at once. It gives access to so many people through identification and through um, it's a very powerful medium. It's a medium to it's a medium that can teach us to dream. It's a medium that can teach us to dream right, to negotiate our differences with each other, to navigate them, to empathize with each other. It's a very powerful medium if done well, but I don't think it's been done well. Talking about like you started from the daily soap, you wrote 82 episodes of Hazmi Karwati and you have done screenplay for Ghar Ghar Ki Kahani. So how did you like from the writing part? How so you see yourself like majorly you are more over inclined to writing something or directing something. Especially if I talk about right now, I'm talking about the daily soaps. Right. I I don't limit myself with media. I think of my role in a more fundamental and simple way. My job in a much simpler way. My job is to collect insights, frameworks, enlightenment. My job is to collect the greatest ideas that we have at our disposal as a civilization, the greatest frameworks that the civilization has come up with, bring them together inside me, filter them through the lens of my own synthesis, my own personal experience, my feelings, my intentions, my hopes, my ambitions, my anxieties, my warnings, and unify them, synthesize them, and then present them in a form that is accessible to the largest number of people. Now that form can be television, can be film, can be directing, producing, writing, can be making games, can be making radio shows, can be making a virtual reality. I don't limit myself with the medium so much. It's like you don't ask a fashion designer ever, यार आपने सुइंग मशीन कौन सा यूज किया? जैसे यार आपने आपने क्या सोच के बनाया, क्या फीलिंग थी, क्या what are you trying to inspire in people who are wearing it? You don't say यार आपने सिंगर का यूज किया या फिलिप्स का यूज किया. So for me, medium is like that sewing machine. It's a technology that you're using to dispense insights and ideas that you have synthesized within yourself. Yeah. So, asking more about the daily soap, like there are more amount of character development if we see. Like sometimes it has seen ki someone character is starting from a negative role or in a. This you stay longer with If them. we say talk about Indian daily soaps like Vamp ka character, and sometimes it's like switching that character in a positive way, giving like sometimes to engage the story, the daily soap audience, especially the female oriented if we say to engage themselves. So the graph like changes a lot. So what are your views on that? Like it should be done or it should be like a maintained pace for the audience to like to maintain the connection with the character basically. I don't think daily soaps are trying to create long drawn graphs of character. What they're trying to do essentially, more often than not, is trigger, stimulate certain anxieties and warnings that we are hardwired to feel. We are all hardwired to be anxious about someone else taking something away from us. We are all hardwired to, and by hardwiring I mean our evolutionary biology that evolved in caves and forests and savannas. We are always like looking at the corner of our eye that somebody will come and take our mating our partner away, our children away, our resources away, our jobs away. And that's an anxiety that is so deeply hardwired in us that you can keep triggering it over and over. You can keep stimulating it over and over again. Long drawn out stories usually just do that. Characters are just vehicles to do that.
So today you're doing this with one character, then you flip it around for just so that you just so that the engagement is maintained, because now it's the same thing but being done by another face, another character. And and a lot of us blame our suffering and our misery. See, life is extremely painful in Forest and Savannah. We continue to carry that, we have continued to inherit that pain in our life in modern societies also. Even though we don't have the threat that we had in Forest and Savannah, we had the threat of forest and caves, that somebody will come and kill us. Yes. Most of us don't live in that threat, but we feel that threat somewhere. So we want something to trigger that threat in us. We want something to tell us that your current misery, your current pain, you know who's responsible for that? That bhabhi, that kaki, Definitely. that bua. We are already we are already. People used to take the examples to their daily life, and like somewhere they are And affected toward it. Not just that, people want to put causality to it. People want to think that the reason they are in a bad shape, उनकी जिंदगी में जो बुरा हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है. बिकॉज हमारी जिंदगी में जो हमारे साथ जो बुरा होता है वो किन कारणों से होता है, वो कहाँ डिसाइड होते हैं, वो साधन जिसकी वजह से हमारी जिंदगी खराब रहती है, बुरी रहती है, वो हमें दिखते नहीं है साधन, कि कहाँ पे यूएस की पॉलिसी में क्या चेंज आ रहा है, सीआईए क्या कर रहा है, बड़े कॉरपोरेशंस गूगल और फेसबुक क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, बड़े स्केल पे रीजनल लेवल पे क्या हो रहा है, ये सब दिखता नहीं है हमें. तो ये बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी मिजरेबल बनती है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में दुख है, पीड़ा है. ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं, हमें ये कारण दिखते नहीं है. तो हमें लगता है यार आसपास की कोई कारण दिख जाए तो हमें लगता है ये बुआ है ना, उसकी वजह से ही हो रहा है. और फिर डेली सोप हमको बताता है हाँ आपकी बात सही है, बुआ की वजह से ही हो रहा है, बुआ तो ऐसी सोचती है. तो आपको उस बात में विश्वास आ जाता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि दुनिया चलती कैसे है. तो डेली सोप एक तरीके से बेवकूफ बनाने का काम है. और ऐसा नहीं कि लेखक बैठ के बेवकूफ बना रहे हैं जानबूझ के. लेखकों को वो भी नहीं पता है कि दुनिया में, जीवन में पीड़ा क्यों है, सफरिंग है क्यों. तो उन लोगों को भी जो समझ में आता है इधर उधर का जोड़ जाड़ के लिख डालते हैं. So there is absolutely no purpose of investigation. It does not have the purpose that it ought to have, which is to inquire into human life, inquire into why we are in the place we are in. Why is it that we have means of peace, we have means of abundance, and we're still fighting with each other? Why? Why is it that we can grow food in space? That's where our technology has reached, but we are not able to feed 1 billion human beings. ये disparity क्यों है? ये इन सवालों के जवाब ढूंढना काम है कथा का और कथाकार का. पर ये सब लेजी है कि ऑडियंस को भी नहीं चाहिए, ऑडियंस को भी पता नहीं है कि क्या सवाल होने चाहिए. इनका काम है ऑडियंस को बताना क्या सवाल होने चाहिए, पर ये लोग अपना काम कर नहीं रहे हैं और किसी को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो चलता रहता है. Do you think जो epics बनते हैं, like to talk about महाभारत हम्म. और रामायण और something, कहाँ बनते हैं? तो बहुत सालों से नहीं बने. जो भी बन रहे हैं, like हनुमान बेस्ड सीरियल्स हाँ. हुआ, कैरेक्टर बेस्ड अब हो रहे हाँ, ज्यादा हाँ, कि हाँ. like सिया के राम और टर्निंग इनटू दैट. हाँ, हाँ. तो उस तरीके से जो डू यू थिंक कि जो हमारे एपिक्स हैं या जो माइथोलॉजिकल बेस्ड शोज, इफ आई टॉक बेसिकली, वो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल्स है, माइथोलॉजीज हैं, जो मनुस्मृतिज है, उनकी जो राइटिंग होती है उसको अपने डायरेक्शन के थ्रू जस्टिफाई करते हैं ऑडियंस तक के लिए. मैंने देखे नहीं है आप जिन शोज के बारे में बात कर रहे हो. मैंने तो बचपन के शोज देखे थे. महाभारत देखा था मैंने, जो बी.आर. चोपड़ा का बना हुआ महाभारत है, जो मुझे लगता है बहुत बहुत ही कमाल है, बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है और कमाल तरीके से. मतलब मुझे अगर बोले कोई कि आप देखिए कि हिंदुस्तान में एक बहुत कमाल की प्रथा है कि हमारे यहाँ पे मिथोलॉजीज बार बार लिखी जाती है, बार बार कही जाती है ना. कि एक राम है, वाल्मीकि का राम है, एक है तुलसीदास का राम है ना. तो हमारे यहाँ पे बार बार, और एक रामानंद सागर का राम है, वो भी राम है. तो हमारे यहाँ पे राम के रूप अलग है, सीता के रूप अलग है, कृष्ण के रूप अलग है, और बार बार इन रूपों का वर्णन अलग अलग प्रकार के लोग आके करते हैं. ये हमारे यहाँ की कमाल की प्रथा है, जिस प्रथा को लेके मैं बहुत एक्साइट होता हूँ कि भाई आपका राम और मेरा राम अलग होगा, आपकी कहानी और मेरी कहानी अलग होगी, आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा अलग होगी, और दोनों का नाम रामायण हो सकता है. ये कमाल की बात इस जगह की है. तो वो तो होते रहना चाहिए. तो ऐसा कुछ है नहीं कि यही एक है कि भाई ये किताब लिख दी वाल्मीकि ने
अभी यही रामायण बनाओ, आप ऐसी कैसे बनाओ तो ही रामायण हुई, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ जैनों ने अपनी रामायण लिखी है, अलग अलग प्रथाओं ने, अलग अलग विचारधाराओं ने अपनी अपनी रामायण व्यक्त की है। ये कमाल की बात है और इससे हमें बहुत ही इस बात का आनंद लेना चाहिए। अभी उसमें उसमें अगर जिम्मेदारी के साथ वो काम किया जाए कि कि ये नहीं किया जाए कि जो लिखा है वैसा का वैसा करो, पर ये सोच के किया जाए कि भाई तुलसीदास ने क्या सोचा था रामचरितमानस के बारे में, क्यों उन्होंने कहा कि ये चरित्र पुरुषोत्तम है, ऐसा क्यों कहा, क्या सोच के कहा उन्होंने। और वो आज के जीवन में, आज के समाज में जहाँ पे वॉर्स हो रहे हैं, जहाँ पे एआई आया है, जहाँ पे जॉबलेसनेस है, जहाँ पे इनइक्विटी है, जहाँ पे गरीब बहुत गरीब हो रहा है, अमीर बहुत अमीर हो रहा है, उस जमाने का पुरुषोत्तम कैसा दिखेगा, उसका वर्णन क्या होगा। तो आज के तुलसीदास को उसका वर्णन करना चाहिए। ये नहीं कि तुलसीदास ने जो कह दिया ऐसे कैसे लिख दो। ये हमारी प्रथा है, ये और हमारी खूबसूरत प्रथा है कि ये करना मुमकिन है। ये करना सिर्फ मुमकिन नहीं, ये करने का आग्रह है। क्या आप अगर आज के जमाने की रामायण या महाभारत लिख रहे हो तो जिस विचारधारा के साथ जिन प्रश्नों को उठाया गया है, वही प्रश्न हम फिर से उठाएं, बार बार उठाएं, और उन प्रश्नों के बहुत ही ऑनेस्टी के साथ नए जवाब दें हम। Moving forward to the question, we have talked about Indian daily soaps and all. Now I want to talk about कि जो commercial advertising, I know आपने वो भी direct किए हैं, you are involved in that part also. Wix का ad, you got awards also, you were the part of that team. So how is directing and commercial advertisement, especially with a message and working with a big brand to make people connect and trustable, and to work on a script of a short film? What is the difference between that direction and to connect with people in a shorter span of time? कुछ नहीं होता है ऐसा, कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं, सब एक ही है। अब ब्रांड्स तो पे करती है इन कहानियों के लिए, इसलिए ब्रांड्स आ जाती है, वरना जो फिल्में मैंने बनाई है वो ब्रांड्स बेचने का काम नहीं करती है कभी भी। तो मैंने वो फिल्म्स नहीं बनाई है जहाँ पे ये ले लो 8 रुपए का साबुन ऐसा टाइप, वो नहीं करता हूँ मैं। कि जहाँ पे वो कहानियां हैं जिन कहानियों का कुछ मूल्य है, उनके होने का, उनके अस्तित्व, उन कहानियों के अस्तित्व का कोई में से कुछ बेनिफिट मिल सकता है हम सबको, तो वो कहानियां बताने का मुझे आनंद मिलता है। वरना मैं कोशिश करता हूँ ना ही बताऊं ऐसी कोई कहानी। तो और उसमें ब्रांड्स पैसे दे देती है तो ब्रांडेड फिल्म हो जाती है, वो इसलिए होता है। तो ब्रांड्स के साथ कोई डायरेक्ट ज्यादा कुछ काम होता नहीं है उसमें। ब्रांड्स क्या चाहती है कि समाज को ये बताए कि हम आपके समाज में एक हैं। ब्रांड्स ये चाहती है, विक्स है या कोई भी है, वो ये बताना चाहती है कि यार हम आपके ही हैं, आपके समाज के, आपके बीच में रहने वाले लोग हैं, इसलिए हम आपको ये जो कहानियां, जो आपके समाज की बहुत जरूरी कहानियां हैं, जो आप लोगों की कहानी है, वो हम आपको बता रहे हैं। ये ब्रांड्स का कहने का तात्पर्य है। तो वो कहानी बनाने में, या हम जो कहानियां बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं जो कहानियां जो हम बताना चाहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। वो बताने के तरीके में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, एटलीस्ट मेरे केस में तो बिल्कुल नहीं होता है। As you mentioned कि आपकी बताने वाली जो कहानियां, talking about Ship of Theseus, talking about Thumbad, how the journey of Ship of Theseus is different from Thumbad, like जो making की journey है, because both the films have different sets of creations or ideology. So what was the process and how did you made this to master? I take many years to make a film. Thumbad took me about 5 to 6 years. Ship of Theseus took me 4 to 5 years in making. So I take a very long time to make a film. And I spend a lot of time investigating what is it that I truly want to say. And then I use the medium of the metaphor, the medium of the allegory, the story, the fable, to try and I use it as a vessel to transmit the ideas around. It's like a capsule. It's like a sweet capsule. आप मीठा कवच है, अंदर जो माल है वो थोड़ा सा कड़वा है, और कड़वी दवा खिलाने के लिए आपको थोड़ा सा एक मीठा कैप्सूल बनाना पड़ता है। हाँ, तो जो कहानी है, जो इसकी जो पटकथा है, उसकी जो इमेजिनेशन है, उसकी जो परिकल्पना है, वो पूरी की पूरी वो वेसल है, वो कैप्सूल है। उसके अंदर जो कड़वी दवा है वो है जो मुझे बार बार अपने आप से पूछनी है, क्या मैं ये खाना चाहता हूँ,
अगर मुझे कोई कड़वी दवा दे आज की तारीख में, तो मैं क्यों, मुझे उस दवा की जरूरत है, मुझे क्या ऐसा रोग हुआ है कि मुझे इस दवा की जरूरत है, ये सवाल मैं बार बार अपने आप से पूछता हूँ। तो समाज को ऐसे कौन से रोग हुए हैं जिस रोग की ये दवा हो सकती है, इस सवाल का जवाब देने के लिए एक दर्शन प्रकट होता है उसमें से। उस दर्शन को कैसे व्यक्त करना है इस कहानी के माध्यम से, वो कवच है, वो बाहर का कवर है। तुम्बाड़ बनाऊं या शिप ऑफ थीसिस बनाऊं या अभी माया बना रहा हूं, मैंने गेम प्रोड्यूस किया है शासन करके, जो कंप्लीटली अलग है। मतलब मैंने जो भी किया है वो कंप्लीटली अलग इसलिए भी है क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट है ऑडियंस को भी। मेरा कमिटमेंट ऑडियंस को है कि मैं आपके पास जब भी आऊंगा, I'll bring completely new ways of looking at life to you. I'll bring a way of looking at yourself, your past, your future, your relationship with the world, and I'll bring completely new ways of looking at these relationships to you. And I'll bring new forms, new artistic styles, new expressions to you with my films. So जो बनाने का प्रोसेस है वो सेम रहता है, वो सेम, वही दिन रात की मेहनत, वही बारिश के लिए रुकना, वही सूरज के उगने और सनसेट के लिए रुकना, वही लाइट। आप अगर देखो तो सिनेमाटोग्राफर सेम है, पंकज जी है तुम्बाड़ और शिप में। बहुत सारी टीम्स रिपीटेड है। नितिन जो हमारा आर्टिस्ट था शिप में, वो प्रोडक्शन डिजाइनर है तुम्बाड़ में। सोहम तो सेम है ही। बहुत सारे लोग सेम टीम्स, गाबोर साउंड डिजाइनर, बहुत टीम जो शिप में है वही हमने तुम्बाड़ में उन लोगों के साथ ही काम किया है। और प्रोसेस तो मोर और लेस वही रहता है, दिन रात की वही मतलब आतंक ही मच जाता है जिंदगी में। तो मतलब बहुत ही मुश्किल ही हो जाती है, रोज रोना पड़ता है, रोज आप सोचते हो कि क्यों कर रहे हो आप ये, क्या ही हो जाएगा, गाली बेखास्ता के बगैर कौन से काम बंद है। ऐसा लगता है कि क्या ही हम ऐसा बोल देंगे जिसकी वजह से दुनिया बदल जाएगी। तो ये सवाल तो रोज उठते हैं, रोज रोना आता है और आप करते रहते हो। So as mentioning Thumbad and of Soham sir, I would like कि जिस तरीके से Thumbad पहले रिलीज हुई, Thumbad री-रिलीज हुई, and री-रिलीज के बाद we have seen what kind of audience का reaction and the way of responses. So at that time was the audience not able to understand the film, और अभी की audience और तब की audience, क्योंकि मेरा मानना है कि वो फिल्म ठीक से उसका प्रचार नहीं हुआ। पहली बार में उसका जो प्रचार होना था, मेरी जो फिल्में हैं ना, उनका प्रचार बहुत ही पेचीदा होता है और वो छूट सकता है, और वो सभी को समझ में नहीं आता है कि उसका प्रचार कैसे करना है बम्बई में। तो उनका प्रचार बहुत ही सहानुभूति के साथ करना पड़ता है। बाकी बॉम्बे की जो फिल्में हैं, जैसे आप पे ठोसी जाती है, थोपी जाती है आप पे, मेरी फिल्मों का प्रचार ऐसे नहीं हो सकता है। मेरी फिल्मों का प्रचार भोजन जैसा है कि हमने खाना बनाया है, आमरस भी तो लीजिए थोड़ा सा, अरे लीजिए, अरे पूरी भी तो खाइए, अरे बैठिए अभी कहाँ जा रहे हैं। ये तरीका है प्रचार करने का। तो वो तरीके से तुम्बाड़ का प्रचार नहीं हुआ, मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि ऑडियंस तैयार नहीं थी, ऑडियंस मेरे हिसाब से तभी भी तैयार थी। शिप ऑफ थीसिस के लिए ऑडियंस तैयार थी, तो तुम्बाड़ के लिए तो तैयार होती। शिप ऑफ थीसिस का प्रचार सही किया हमने। शिप ऑफ थीसिस में हमने प्रचार ऐसे ही किया, अरे आइए हमारे यहाँ शादी है, आइए हमारे पास दो विचारधारा है, कुछ दर्शन है, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ लोग हैं हमारे ही है, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ आकांक्षाएं हमारी ही है, आइए साथ में मिलकर बात करते हैं। ऐसे हुआ उसका प्रचार, ऐसे ही होना चाहिए और यही सही तरीका है प्रचार करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सर कि जो रीजनल सिनेमा है, we have seen they are getting a good amount of audience, good amount of boom, and somewhere if we talk about not mainstream, we talk about Bollywood industry, stories people are not able to connect with stories वैसी है, या sometimes they are like कि over dramatic। हाँ, तो वो why regional cinema is having that X factor which Bollywood industry is missing? Do you think is it? बिल्कुल सही बात है। मैं अभी बता रहा था उसके बारे में कि रीजनल सिनेमा बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अगेन हमारे देश की ये कमाल की बात है कि हमारे पास इतने डाइवर्स कल्चर्स है। We take it for, we hear about diversity in school and we say India is a diverse country, and we almost take that statement for granted. We stop hearing what it means. It means we are truly a diverse culture. We have an incredible wealth of perspectives, lived philosophies and ideas and lives and lifestyles that we can bring to the table for each other to examine and share.
that is our strength. That's an incredible strength. आप देखिए, अभी मैं किसी से बात कर रहा था जो पंजाब से थे, है ना, आप सेंट्रल इंडिया से हैं, अभी मैं उससे पहले किसी से बात कर रहा था जो साउथ से थे. आप देखिए उनका सिनेमा, देखिए कंप्लीटली अलग बातें हैं, उनके प्रॉब्लम्स अलग है, चैलेंजेस अलग है. तो वो हम एक दूसरे के साथ टेबल पे लाके शेयर कर पाते हैं. उससे we can draw insights, we can share insights, we can share warnings. That's an incredible strength that we have, right? Bollywood has not been very responsible towards those strengths, has been very irresponsible towards those strengths, and that's why it's not doing well. It's being punished because of that. Because अपने बच्चों को डाल दिया, आप जूतों की बात कर रहे हो, गुटके की बात कर रहे हो, कपड़े कौन से पहने, किसने क्या बैग खरीदा है, ये बातें कर रहे हैं. यहाँ पूरे देश में लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग समस्या है, अलग अलग विचार है, अलग अलग आकांक्षा है. उनकी बात करने के छोड़ के आप बोल रहे हो कोट किसने क्या पहना है, कपड़े किसने क्या पहने, किसने क्या बाल बनाए, किसने क्या जूते बनाए. बकवास कर दिया आपने इतनी. We can see कि जो regional cinemas है, they are more inclined toward processing or showing the stories which is related to the roots. हाँ, We can see बिल्कुल. they're having this village setup. नहीं, रूट्स नहीं ना, आप और मैं रूट्स नहीं है. हम रूट, शूट और फ्रूट सब कुछ है, सिर्फ रूट्स की बात नहीं है. रीजनल सिनेमा डज नॉट कंटेन इटसेल्फ विथ रूट्स अलोन. Regional cinema is an expression of who we are today and where we want to go. That's why it's relevant. Like they are presenting on the international platforms rather than जो Bollywood if you talk about, they are having this glorified big sets and that glamorous and all, but still एक जो तो कपड़ों की दुकान है. अभी कपड़ों की दुकान की भी एक जगह है, शादी में नाचने की भी एक जगह है. अभी वो जगह सेंट्रल जगह जब बन जाती है तब प्रॉब्लम है. सेंट्रल जगह तो लेनी चाहिए हमारी आकांक्षाओं को, हमारी वार्निंग्स, आर एंजाइटीज, आर फीलिंग्स, आर डिजायर्स, आर इंटेंशंस, आर पॉलिसीज, हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड अ सोसाइटी टुगेदर. दीज आर द कॉन्वर्सेशंस दैट शुड टेक अ सेंट्रल प्लेस. शादी में नाचना उसके साथ एक आ सकता है एज अ चेरी ऑन टॉप. अभी शादी में नाचना, पेड़ के आसपास नाचना और गाना ही अगर सेंट्रल चीज बन जाए आपकी जिंदगी की, तो फिर आप सही जिंदगी नहीं जी पाओगे. मतलब so that's the challenge with Bollywood. It has to come out of being the place which is a hanger for new clothes. It's for a long time it's remained a hanger to hang new clothes on. Like if we are having a shortage of time, so I'm asking the last question, but who is your favorite director and a movie not जी, which you could recommend to the people? जी जी जी, This is a must watch and they should not miss it. ठीक है. तो एमिर कुस्तुरिका की फिल्म है अंडरग्राउंड. आई विल रेकमेंड दैट वेरी स्ट्रांगली. आई विल रेकमेंड माइकल हैनेके's White Ribbon very strongly. I'll recommend रूबेन ओस्लुंड्स स्क्वायर क्वाइट स्ट्रांगली. अगर हिंदुस्तान के सिनेमा की बात की जाए तो मेरे मित्र विनय की फिल्म वाइल वी वॉच देखिए. उससे पहले की फिल्म जो खुशबू के साथ बनाई उसने, एन इनसिग्निफिकेंट मैन, जो मैंने प्रोड्यूस की, वो देखिए. आप चैतन्य की फिल्में हैं, कोट, डिसाइपल, वो देखिए. माय जनरेशन ऑफ स्टोरी टेलर्स हैव बीन सो इररिस्पांसिबल फ्रॉम बॉम्बे, नॉट फ्रॉम एनीवेयर एल्स, फ्रॉम बॉम्बे. They've been so irresponsible, and the generations before that also. They're not talking about India. They're not talking about, like, I'll give you one story, okay? एक अच्छा किस्सा सुनाता हूँ. We were shooting in Banmoli, and shooting Tumbad, and we had opened up the lunch to locals. It said, please come and join us for lunch. A lot of locals were around and were having lunch with us. Farmers were having lunch with us. And post lunch, I sneak on their conversations and introduce myself, saying, यार मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, आपके गांव में बना रहा हूँ, धन्यवाद, क्या मैं यहाँ पे आप मेहमान बना के रखा है हमने, आपने हमको, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही हमसे. I'm having a conversation with everyone. I see that there are two farmers who are having a passionate conversation in Marathi, and a magazine is lying open in front of them. They're slacking their lime on their hands, and they're shoving in their lip, and they are having a passionate conversation. I understand Marathi. I don't speak Marathi very well, but I understand Marathi quite well, being in Bombay all my life. I see they are having a passionate discourse on metaphysics. They are having a conversation about the nature of consciousness, whether it is contained within material life
or whether it can exist outside of material life, whether it can continue, whether memory can continue outside. This is two farmers having a conversation, very casual post-lunch conversation, slacking their lime, having a conversation about the nature of consciousness, nature of memory, whether memory is contained in the physical form, whether memory can be carried on in non-physical forms, whether there is such a thing can exist, having a very casual debate over it while slacking lime. And the magazine that they're reading, that magazine, I think is, if I'm not mistaken, somebody can correct me if I'm mistaken, was 3 rupees or something like that, that magazine. And that magazine was called, Metaphysics. It was a philosophy magazine that they were reading in Marathi, in local Marathi. They were reading a philosophy magazine and having a discourse on the nature of memory and consciousness. इस हिंदुस्तान की हम बात नहीं करते कभी. हम बात करते कपड़े कौन से टांगे हमने, कोई किसी ने इटली में कोई छट्टी सी ब्रांड बना दी है, आप उसको बेच रहे हो, आप वो जूते बेच रहे हो, आपको लग रहा है आप बहुत कूल हो जूते पहन के. मतलब जो कमाल है हमारी अभिलाषा है, हमारी आकांक्षाओं का जो कमाल है, हमारे साहित्य का जो कमाल है, हमारे लोगों का जो कमाल है, वो आप दिखाते नहीं हो. तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि मजा भी क्यों आता है लोगों को. अभी तो मैं वो भी सोचता हूँ कि हम क्यों मजे लेते हैं इन चीजों में, जबकि हमको पता है, हम आसपास में देखो तो कमाल की कहानियां हैं. 100 करोड़ लोग हैं हम, उससे ज्यादा ही होंगे. 140 करोड़ लोग हैं, 144 करोड़ लोग हैं. 144 करोड़ लोग हैं तो 300 करोड़ तो कहानी बनती है. एक आदमी के पास 2 कहानी होती होगी. 300 करोड़ कहानियां हैं हमारे पास, और हमें लगता है कि यार वो वाला जो अमेरिका का शो है ना, उसको हम कॉपी कर लेते हैं तो हमारी कहानी चलेगी. ये क्या बदतमीजी है, ये क्या पागलपन है कि हमको ये समझ में 300 करोड़ कहानियां हैं और हम उसमें से हम वो कहानियां बता ही नहीं रहे एक दूसरे को. तो ये तो मतलब बहुत खराब हाल में है बॉलीवुड, तो बहुत खराब हाल है. All right, that's all we have with Mr. Gandhi. Thank you so much, sir. Thank you. Lovely. देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से. आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ.